بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سچی کہانیوں میں خوش آمدید ویورز، آج پھر آپ کے لیے ایک اور سبق آموز سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچی کہانی سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ چلیں اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ میری پھپھو اور امی ایک دوسرے کی نندیں بھی تھی اور بھابیاں بھی۔ وٹے سٹے کی یہ رسم برسوں سے ہمارے خاندان میں چلی آ رہی تھی۔ یہ وٹا سٹا میری دادی کی مرضی سے ہوا تھا۔ پھپھو کی بالکل بھی مرضی نہ تھی کہ ان کی شادی ماموں سے ہو، اسی وجہ سے وہ ہمیشہ ناخوش رہیں۔ اس کے برعکس میرے امی ابو اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ ہم 2 بہنیں اور پھپھو کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا۔ پھپھو چونکہ اپنی شادی سے مطمئن نہیں تھی، اس لیے زیادہ تر میکے میں ہی رہتی تھی۔ ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا اور ہماری شدید خواہش تھی کہ ہمارا بھائی بھی ہو۔ پھر تقریباً 10 سال بعد ہمارا بھائی پیدا ہوا، جس کا نام دانش رکھا گیا۔ بھائی کو پا کر ہم بہت خوش تھے۔ اسی دوران امی کو شہر میں لائبریرین کی جاب مل گئی اور ہم شہر آ گئے۔ بابا نے بھی اپنی کچھ زمین بیچ کر ایک چھوٹا سا گھر اور گھر کے قریب ہی دکان بھی لے لی اور اس طرح ہم شہر میں رہنے لگے۔ زندگی معمول کے مطابق گزر رہی تھی کہ ایک بھونچال آیا۔ بابا کا روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا تو غموں کا ایک پہاڑ ہم پر ٹوٹ پڑا۔ دکھ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے اور اسی مرہم سے ہم یہ غم جھیل گئے۔ ہم تو بچے تھے مگر امی کے ساتھ تو یہ غم آسیب کی طرح چمٹ گیا تھا، اور وہ آسیب تھا ہماری دادی، جو اٹھتے بیٹھتے امی پر طنز کے تیر برساتی رہتی تھی کہ پہلے نوکری کا بہانہ کیا اور میرے بیٹے کو بھلا پسلا کر شہر لے آئی، مجھ سے دور کیا اور اب اسے کھا گئی۔ اب تو کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا ہوگا۔ میں تو کہتی ہوں یہ لوگ منحوس ہیں، پر میری سنتا کون ہے؟ ایسی باتوں سے امی کا چہرہ کرب کی تصویر بن جاتا تھا۔ امی کے ساتھ ہم جب بھی گاؤں جاتے تو ایسی باتیں سننے کو ملتی۔ آخر ہم بچوں نے ماں کو گاؤں جانے سے روک دیا۔ جب ماں کہتی گاؤں چلیں پھپھو سے ملنے تو ہم منع کر دیتے۔ اگر دادی کو ہماری یاد آئے گی تو خود آ جائیں گی۔ دادی شہر آتی تو امی کا جینا پھر دھوبر ہو جاتا۔ امی بڑی صابر عورت تھی، انہوں نے کبھی پلٹ کر دادی کو جواب نہیں دیا۔ جب دادی چلی جاتی تو گھر میں سکون ہو جاتا۔ امی اب ہماری ماں بھی تھی اور باپ بھی۔ ہماری بہتر تعلیم اور پرورش امی کا اہم مقصد تھا۔ ہم تینوں بہن بھائی ہر سال اپنی جماعتوں میں امتیازی نمبر لے کر کامیاب ہوتے رہے۔ زندگی اسی طرح اپنی ڈگر پر چل رہی تھی کہ میری زندگی کے سمندر میں پہلا پتھر پڑا اور ہلچل ہونے لگی۔ رات کو جب سب سونے کے لیے چلے گئے اور میں کچن سمیٹ رہی تھی، تب امی نے میرے پاس آ کر کہا تھا، بیٹا فاطمہ، آج تمہارے ماموں نے اسد کے لیے تمہارا ہاتھ مانگا ہے، تمہیں تو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے نا؟ امی میری طرف دیکھنے لگی۔ امی جو آپ مناسب سمجھیں، میں نے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ امی نے میری پیشانی چومی اور چلی گئی اور میں اسد کے بارے میں سوچنے لگی۔ پھر ایک بہار بھری شام میں ماموں اور ممانی آئے اور مجھے اسد کے نام کی انگوٹھی پہنا گئے اور بدلے میں ماموں کی بیٹی جو کہ 13 برس کی تھی اور میرا بھائی دانش جو اس وقت FSC کر رہا تھا، ان کی بھی بات پکی ہو گئی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، ہمارے خاندان میں وٹے سٹے کا یہ رواج برسوں سے تھا۔ اسد چوں ہی برسر روزگار ہوا، ہماری شادی ہو گئی۔ اسد کی محبت اور ماموں کی شفقت میں زندگی بہت حسین ہو گئی تھی۔ البتہ میری ممانی جو کہ میری سگی پھپھی بھی تھیں، ان کا رویہ میرے ساتھ سرسا تھا، لیکن میرے دل میں ان کے لیے کوئی بری بات نہ تھی، اس لیے میں ان سے محبت اور ان کی عزت کرتی تھی اور دل و جان سے سب کی خدمت بھی کرتی تھی، لیکن پھر بھی میں ان کے دل میں جگہ نہ بنا سکی۔ 2 سال اسی طرح گزر گئے۔ اس دوران میری کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ پہلے تو پھپھو دبے لفظوں میں تانے دیتی تھی، مگر اب تو انہوں نے صاف صاف کہنا شروع کر دیا تھا کہ مجھ سے لکھ لو، یہ ماں نہیں بنے گی۔ تیسرا سال بھی اسی طرح سرک گیا اور کوئی امید نہ بنی۔ اسی دوران میں دانش اور بنش کی شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی اور گھر میں شادی کے ہنگامے شروع ہو گئے اور میں بھی کبھی اپنے گھر اور کبھی اپنی امی کے گھر رہنے لگی۔ بھائیوں کی شادی کا بہنوں کو بہت ارمان ہوتا ہے، ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ ہم اپنے اکلوتے بھائی کی شادی کے ارمان نکالنے کی تیاریاں کر رہے تھے اور پھر وہ مبارک دن بھی آ گیا جب بنش ہمارے گھر ہمارے بھائی دانش کی دلہن بھر کے ہمارے آنگن میں آئی اور وہ دونوں خوش و خرم زندگی گزارنے لگے۔
अम्मी भी बहुत खुश थी। दिन गुजरते पता ही नहीं चलता। जब अम्मी की दादी बनने की खबर हमारे घर पहुंची तो फुप्पो ने तंज करते हुए कहा कि मैं तो ये हसरत कब्र में लेकर जाऊंगी कि अपने पोते पोतियां देखूं, और मैं आंसू बहाकर रह गई। भला मेरे बस में क्या था? सब मेरे मालिक का इख्तियार था। एक दिन दादी ने मुझे बुलाया और कहा, देखो बेटा, अगर तुम औलाद नहीं चाहती तो मुझे कह दो, मैं तुम्हारी सास को समझा दूंगी। दादी के इस तरह पूछने पर तो मैं हैरान ही रह गई। दादी, आप ऐसा सोच रही हैं? मैंने बेयकीनी से दादी को देखा। हाँ, क्योंकि तुम्हारी माँ बहुत चालाक है। मैं अपने कमरे में भाग आई और रोने लगी और खुदा के हुजूर गिड़गिड़ाने लगी। कुछ दिनों बाद बिनिश ने एक खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया। हमारी खुशियों का कोई ठिकाना ना था। बच्चे का नाम अरहम रखा गया। खूब मिठाइयाँ बांटी गई। अम्मी मेरे घर भी मिठाई लेकर आईं। शाम को जब वो जाने लगी तो फुप्पो ने कहा, अब मेरे बेटे असद की भी औलाद हो जानी चाहिए। समझा दो अपनी बेटी को और ख़ुद भी समझ लो। ये मेरे बस में नहीं है। और क्या मैं नहीं चाहती कि फातिमा माँ बने? अम्मी ने जवाब दिया। दादी ने कहा, तेरी चालाकियाँ तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। पहले तूने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया, फिर मुझे पोते पोतियों की शक्ल देखने से तरसाया, और अब मेरी बेटी को भी बेटे की औलाद देखने से तरसा रही है। ये खुदा की तरफ से कोई आजमाइश है। मेरी बेटी की नीयत में कोई खोट नहीं है। अम्मी ने दुख से कहा और गमज़दा सी लौट गईं। अब फुप्पो उठते बैठते मुझे ताने देने लगी कि तुम बांझ हो, और मैं अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाने के सिवा क्या कर सकती थी। मामू और असद ही मेरा सहारा थे। फुप्पो और दादी दोनों ही जैसे सतेलों जैसा सलूक करती थी मेरे साथ। एक रात मामू ऐसे सोए कि फिर कभी नहीं उठे। इनके जाने से मेरे दुखों में इजाफा हो गया, क्योंकि मामू मेरी ढाल थे। अब वो भी ना रहे तो फुप्पो को रोकने टोकने वाला कोई ना था। दादी और फुप्पो दोनों सर जोड़े बैठी रहती। मैं बावजूद खिदमत करने के इनको बिल्कुल ना भाती थी। असद भी अपने काम की वजह से 3-3 दिन तक साइट पर होते, बल्कि घर की कशीदगी की वजह से अब तो वो हफ्ता हफ्ता नहीं आते थे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे कि दादी भी गुजर गई। घर में खामोशी रहती। फुप्पो ने मुझसे बात करना ही छोड़ दी। मैं फिर भी इनकी जी जान से खिदमत करती थी। उस दिन मैं किचन में काम कर रही थी। असद ऑफिस से आए। फुप्पो सहन में बैठी थी। इन्होंने असद से कहा, बिनिश के यहाँ अब दूसरी बार औलाद होने वाली है। मैं तो यह आरज़ू लेकर तुम्हारे अब्बा की तरह कब्र में चली जाऊंगी। और वो रोने लगी। यह आप क्या कह रही हैं अम्मी? खुदा ना करे, असद ने परेशानी से कहा। और क्या, तुम मेरे बेटे थोड़ी हो जो तुम्हें मेरा ख्याल हो? फुप्पो ने रोते हुए कहा। अम्मी, आपको क्या हो गया है? असद ने फुप्पो का हाथ चूमते हुए कहा। अगर ऐसा है तो तुम दूसरी शादी कर लो, फुप्पो ने साफ साफ कह दिया। मगर अम्मी, असद हैरत से माँ को देखने लगे। अम्मी, फातिमा मेरी बीवी ही नहीं, आपकी भतीजी भी है। मैं बांझ भतीजी का क्या करूं? और फिर तुम मेरे अकलौते बेटे हो। ये बातें सुनकर तो मैं जैसे बिल्कुल ठंडी पड़ गई थी। दूसरे दिन असद ड्यूटी पर चले गए। अब मैं खुदा से खूब बिलक बिलक कर दुआएं मांगती। मेरी और असद की तिबी रिपोर्ट्स भी बिल्कुल दुरुस्त आई थी। अम्मी ने भी मन्नतें वगैरह खूब मांगी थी। एक रात में अपने रब के हुजूर बहुत गिड़गिड़ाई, ऐ अल्लाह, तू मेरी आजमाइश ख़त्म कर दे और मेरी गोद भर दे मेरे मौला। मैं रोते रोते जानिमाज़ पर ही सो गई। ख्वाब में देखा कि एक सफ़ेद फ्रॉक में मलबूस बहुत ही प्यारी बच्ची मेरी गोद में है। जब आंख खुली तो दिल पर अजीब सी सरशारी थी। मेरा रोम रोम बहुत खुश था। असद आए तो मैंने इन्हें भी अपना ख्वाब बताया। वो बहुत खुश हुए। खुदा हमें ज़रूर औलाद की खुशी देगा और हमें कोई जुदा नहीं कर सकेगा। मैंने दिल ही दिल में उनकी बात पर आमीन कहा और फिर इस्मा डॉक्टर ने मुझे माँ बनने की नवीद सुनाई। अब जब बिनिश दूसरे बच्चे की माँ बनी तो मेरी गोद भी भरने को थी। फुप्पो समेत सबको दोहरी खुशी मिली थी। ठीक 9 माह बाद मेरी गोद में एक प्यारी सी बच्ची थी। इसका नाम मैंने सिदरा रखा। फुप्पो भी पोती के साथ बहल गईं और हमारे घर में खुशियाँ डेरे डालने लगीं। जब दानिश और बिनिश के बच्चे आते और हमारी सिदरा भी तोतली ज़ुबान में बातें करती तो घर का आंगन जैसे मुस्कुराने लगता। मैं सोचती बच्चों के बगैर तो ज़िंदगी बिल्कुल बेमज़ा थी। ज़िंदगी इसी तरह खुशियों के साथ गुजर रही थी। लेकिन अब जो तकदीर ने मुझसे मजाक किया था, इसने तो मुझे तोड़ कर रख दिया। इस दिन असद ने फ़ोन करके बताया कि आज मैं आ रहा हूँ। मैंने इनका पसंद का खाना बनाया, खुद तैयार हुई, सिदरा को तैयार किया और हम इनका इंतज़ार करने लगे। दोपहर तक वो आ जाते थे मगर दोपहर से शाम हो गई, फ़ोन भी नहीं लग रहा था।
फुप्पो बार बार मुझसे पूछती, मैं इनसे पूछती कि फ़ोन मिलाया। पता नहीं क्यों मेरा दिल घबराने लगा था। शाम के वक्त दानिश गाड़ी ले आया और कहने लगा कि असद भाई का फ़ोन आया था, तुम्हें और फुप्पो को ले आऊं। मैं हैरान हुई कि ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। सच सच बताओ क्या हुआ है? असद तो खैरियत से है ना? मैंने बेकरारी से पूछा। कोई बात नहीं है, रास्ते में असद भाई का मामूली सा एक्सीडेंट हो गया था, दानिश ने कहा। क्या? फुप्पो और मैं एक साथ चीखे। घबराने की कोई बात नहीं, खुदा खैर करेगा। हम जल्दी जल्दी दानिश के साथ रवाना हुए। अस्पताल पहुंचे तो असद को शदीद चोटें लगी हुई थी। उन्होंने फुप्पो से बस 2-3 टूटी फूटी बातें की और दम खुदा के हवाले कर दिया। हम पर तो क़यामतें टूट पड़ी। इस दुख को लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। बहरहाल असद का 40वां हो गया। 40वें के बाद फुप्पो ने दानिश से कहा कि मेरी बेटी नहीं जाएगी तुम्हारे साथ, अपनी बहन को ले जाओ और जाकर अपनी अम्मा के पास रखो। दानिश ने भी बहस नहीं की और फुप्पो का दुख बड़ा था, इसलिए मैं अपनी बेटी सिद्रा के साथ अम्मी के घर आ गई। दानिश अपने ससुराल में रहने लगा और हर हफ्ते आता था, मगर फिर इसके आमद का वक्फा बढ़ गया और वो महीने बाद आने लगा। अम्मी ने कभी कोई शिकायत नहीं की और हमें भी सब्र करने की तलकीन करती रहीं। घर में सिद्रा की वजह से रौनक थी, वही तो मेरे जीने की उमंग और ज़िंदगी की खुशी थी। फुप्पो कभी कभी हमारे घर आने लगी थी और चंद दिन रहती थी। हम खुश थे कि शायद फुप्पो को भी करार आ गया है। वो सिद्रा के साथ खेलती रहती। सिद्रा तोतली ज़ुबान में दादी से बातें करती तो मेरी रूह तक सरशार हो जाती। एक दिन फुप्पो ने मुझसे कहा, मुझे बाज़ार से कुछ चीज़ें लेनी हैं, 1-2 घंटे में वापस आ जाऊंगी। तुम्हारे लिए क्या लाऊं चंदा? इन्होंने गुड़िया से खेलती सिद्रा से पूछा। मेरे लिए भी एक गुड़िया लाना, सिद्रा ने तोतली ज़ुबान में कहा। ऐसा करो तुम भी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक खूबसूरत फ्रॉक भी दिला दूंगी और गुड़िया भी, तुम खुद पसंद करके ले लेना। फुप्पो ने कहा। नहीं फुप्पो, ये आपको तंग करेगी। मैंने कहा, अरे नहीं, औलाद का तंग करना भी अच्छा लगता है। इन्होंने दुलार से कहा। चलो जल्दी से इसे तैयार करो, करीब ही तो जाना है। फुप्पो कोई गैर तो नहीं थी जो मुझे इतराज़ होता, वो सिद्रा की दादी थी। मैंने सिद्रा को नया फ्रॉक पहनाकर तैयार किया। वो गुड़िया की तरह प्यारी लग रही थी। मैंने नज़रों ही नज़रों में इसकी बलाएं ली। वो हंसती हुई अपनी दादी के साथ चली गई। मैं जल्दी जल्दी काम निपटाने लगी। अम्मी और बहन स्कूल गई हुई थी। खाना बनाने के बाद मैं आराम करने लगी। अम्मी वगैरह भी स्कूल से वापस आ गईं। आते ही सिद्रा का पूछा। वो ज़रा फुप्पो के साथ शॉपिंग के लिए बाजार तक गई है, खाना निकाल दूं? मैंने पूछा। नहीं, हमारी बेटी सिद्रा आ जाएगी तो मिलकर खाना खाएंगे। 1 घंटा इस तरह गुजर गया, लेकिन फुप्पो नहीं आई। हत्ता कि शाम होने को थी, मगर फुप्पो का कोई अता पता ना था। अब तो हम सबको फिक्र होने लगी। शहर के हालात का भी ना पता था कब क्या हो जाए। जब अंधेरा छाने लगा तो मैंने रोना शुरू कर दिया। अम्मी ने फ़ोन करके सब जगह मालूम किया। वो किसी अजीज़ के घर नहीं थी, वैसे भी हमारे कौन से ज़्यादा अजीज़ थे। बिनिश और फुप्पो दोनों के फ़ोन ऑफ जा रहे थे। मैं बेतहाशा रो रही थी। अम्मी मुझे समझाते हुए कहने लगी, खुदा को याद करो और दुआ करो कि वो खैरियत से हों। अब मगरिब का वक्त भी गुजर गया था और इशा की अज़ान हो रही थी। हमने नमाज़ पढ़ी, रोते गिड़गिड़ाते सोते जागते रात कटी। सुबह सुबह पहली बस से गांव भागे। दोपहर के वक्त वहां पहुंचे तो घर को ताला देखकर मैं तो वहीं गिर पड़ी। सब रिश्तेदार पड़ोसी जमा हो गए। अम्मी ने मुझे संभाला। होश आने के बाद रोते हुए मेरी आवाज़ बैठ गई। गांव में सब फुप्पो की इस हरकत पर हैरान थे और खैर की दुआएं मांग रहे थे। वहीं हमें ये पता चला कि दानिश का तबादला दूसरे शहर में हो गया था और वो अपने बेटे अरहम को साथ लेकर गया था। खुदा खुदा करके दानिश का नंबर मिला तो ये जानकर हैरत का झटका लगा कि इसका तबादला हुआ ही नहीं है। वो मुल्तान में ही है अरहम के साथ। इसने सब अहवाल सुनने के बाद कहा कि मैं फ़ौरन निकलता हूँ। मुझ पर तो बेहोशी के दौरे पड़ने लगे। अम्मी मुझे किराए की गाड़ी में गांव से वापस घर ले आईं। मुझे अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। मुझे जब भी होश आता सिद्रा सिद्रा पुकारती। 20 दिनों बाद मेरी तबीयत कुछ संभली और डिस्चार्ज होकर मैं घर आ गई। दानिश और अम्मी दोनों ने छुट्टी ली हुई थी। अखबार, टीवी, रेडियो हर जगह इश्तिहारात दिए, लेकिन फुप्पो और बिनिश का कोई पता न चला। दानिश को तो इस बात की हैरत थी कि बिनिश ने भी इसे कुछ नहीं बताया था और ख़ुद भी 5 साला अरहम को छोड़ गई थी। क्या इसे अपने बेटे की याद नहीं सताती? हमारे पास इन सब सवालों का कोई जवाब ना था, सवाए आहें भरने और रोने के। वक्त किसी के लिए नहीं ठहरता, सो मेरे दिन भी गुजरने लगे।
तानिश ने अरहम मुझे सौंपते हुए कहा कि इसे सिद्रा की जगह ले लो, तुम्हारी ममता को कुछ न कुछ तसल्ली हो जाएगी। और मैं बस चुपचाप खाली खाली नज़रों से उसे देखती रह गई। ज़िंदगी अपनी डगर पर चलने लगी। मैं और अरहम घर में होते। वो बहुत सादतमंद बच्चा था, कभी तंग नहीं करता था, बल्कि अगर मैं चुपचाप लेटी होती तो वो मेरा सर दबा दिया करता, मेरे आसपास ही रहता, मेरे पास ही सोता। इसी वजह से मेरा ध्यान इसकी तरफ होने लगा, मेरी ममता इसकी तरफ मुतवज्जा होने लगी। वो मुझसे बातें करता, मेरे छोटे मोटे काम करता। तब मुझे इस पर बहुत प्यार आया कि ये भी तो अपनी माँ से दूर है, ये भी तो मेरे जैसा ही है, बल्कि ये तो अभी छोटा है। वो मेरे सामने कभी अपनी माँ को याद नहीं करता था, बहुत हसास बच्चा था। और फिर हम दोनों वाकई माँ बेटे बन गए। सिद्रा की याद एक फांस की सूरत दिल में पेवस्त हो गई। जब उसकी याद आती दिल से दुआ निकलती, खुदा उसे खुश और सलामत रखे। इसी दौरान मैंने भी टीचिंग की जॉब कर ली। अरहम स्कूल जाने लगा था। दानिश मुल्क से बाहर चला गया और वहीं इसने एक पाकिस्तानी फैमिली में शादी कर ली। ईद पर दानिश आया तो बहुत खुश था। इसकी दूसरी बीवी बहुत अच्छी थी। वो 10 दिन रहकर वापस चले गए। वक्त गुजरता रहा। अरहम अब बड़ा हो गया था। एक दिन अम्मी भी मेरा साथ छोड़ गई। दानिश आया, 40वां करके चला गया। मैंने भी वो घर और वो शहर छोड़ दिया। अपनी छोटी बहन रुशना और अरहम को लेकर दूसरे शहर आ गई। 1 साल बाद रुशना भी अचानक ही मेरा साथ छोड़ गई और मैं तन्हा रह गई। अरहम जो अब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मेरा बहुत ख्याल रखने लगा था। वो हॉस्टल में रहता था। ताहम रुशना की वफ़ात के बाद वो मेरे साथ रहने लगा। वो बहुत फर्माबरदार बेटा था। वही तो मेरी ज़िंदगी का हासिल था। सिद्रा तो अब कसक बनकर रह गई थी। कई दिनों से मैं नोट कर रही थी कि अरहम के चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट जगमगाती रहती है। मामा, मैं ज़रा एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, आप दरवाज़ा लॉक कर लीजिएगा। बहुत खुश लग रहे हो और बड़े एहतमाम से तैयार भी हुए हो, क्या कोई ख़ास दोस्त है? मैंने मुस्कुराते हुए इससे पूछा। हाँ मामा, कभी आपको भी मिलवाऊंगा। ज़रूर ज़रूर, मैंने हंसते हुए गेट लॉक किया। अब वो अक्सर अपनी दोस्त की बातें बड़े शौक़ से मुझे बताता। इसका नाम परिवश था। वो इसे अपने दोस्त की शादी में मिली थी और अरहम इसे देखते ही दिल हार बैठा था। परिवश अकलौती थी। अरहम ने इसके बारे में मुझे बताते हुए कहा था। बाप, मैंने सवालिया नज़रों से इसे देखा। पता नहीं, ना कभी परिवश ने बताया, ना मैंने कभी पूछा। अरहम ने कहा। दिन इसी तरह गुजरते रहे। इतवार का दिन था। मैं लॉन में बैठी चाय पी रही थी। अरहम आया। मॉम, अगर आप कहें तो मैं आज परिवश को इनवाइट कर लूँ शाम की चाय पर? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं खुश हो गई। हर माँ को बेटे की शादी का अरमान होता है, मुझे भी था। फिर कब शाम हुई पता ही ना चला। परिवश से मिलने का मुझे बहुत इश्तियाक था, इसलिए मैं लॉन में बैठी सरापा इंतज़ार थी। बार बार नजरें गेट की तरफ उठ जाती। इंतज़ार की घड़ियाँ कटी और कार आकर गेट पर रुकी। मैं गेट की तरफ बढ़ी। कार में अरहम और 19-20 साल एक लड़की उतरी। वही परिवश थी। परिवश, ये मेरी मॉम है। अरहम ने तारुफ करवाया। वो गर्म जोशी से मिली। फिर हमने मिलकर चाय पी, लेकिन मेरी नज़रें तो इसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी। मुझे एक अजीब सी कशिश उसमें महसूस हो रही थी। उसके जाने के बाद मैं बहुत बेचैन रही। मॉम, परिवश कैसी लगी आपको? अरहम ने मुझसे पूछा। बहुत ही प्यारी है। वो शुक्रिया मॉम। अरहम मुझसे लिपट गया। एक दिन अरहम मुझे लॉन्ग ड्राइव पर ले गया। मुझे खूब सारी शॉपिंग करवाई। रास्ते में जाते हुए मुझे कहने लगा, मॉम, हम परिवश के घर जा रहे हैं। इसने कहा। चेहरे पर खुशी का रंग नुमाया था, लेकिन इस तरह अचानक मैं हिचकिचाई। अच्छा, आपका मूड नहीं है तो कैंसिल कर देते हैं। इसका चेहरा बुझने लगा। नहीं, ये बात नहीं है तो फिर चलिए ना। वो इसरार करने लगा। ठीक है बेटा, चलो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। परिवश के अब्बू फौत हो चुके हैं। वो अपनी माँ के साथ अकेली रहती है। अभी इसकी बातें जारी थी कि गाड़ी एक छोटे से गेट पर रुकी। परिवश हमें देखकर बहुत खुश हुई। बातों के दौरान पता चला कि परिवश की अम्मी कहीं शादी की तकरीब में गई हुई हैं। अगर पता होता तो आप लोग आ रहे हैं तो मैंने रोक लेती। परिवश ने चमकती आंखों के साथ अरहम को देखते हुए कहा, तो वो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। कोई बात नहीं बेटा, बस अचानक ही मूड बन गया। खैर, तुम्हारी अम्मी से फिर कभी मिल लेंगे, मैंने कहा। परिवश के घर से आने के बाद मैं बहुत उदास थी। मुझे बार बार सिद्रा का ख्याल आ रहा था। अगली सुबह मैं स्कूल भी नहीं जा सकी और अरहम भी घर पर था।
अक्सर ऐसा होता था कि जब मेरी तबीयत ठीक नहीं होती थी तो वो भी छुट्टी कर लेता था और सारा दिन मेरी खिदमत करके मेरा दिल बहलाने में लगा रहता, लतीफ़े सुना सुना कर मुझे हंसाता रहता। शाम तक मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर हो चुकी थी। अरहम बाहर गया हुआ था कि बेल बजने लगी। मासी ने आकर बताया कि परिवश और उसकी अम्मी आई हैं। तुम इन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं अभी आती हूँ। ड्राइंग रूम में कदम रखते ही मैं साकित सी रह गई। सामने सोफे पर बैठी औरत को भला मैं कैसे भूल सकती थी। 20 साल की धूल पड़ने के बावजूद मैंने बिनिश को पहचान लिया था और वो भी मुझे देखती की देखती रह गई। फिर उठकर मुझसे लिपट गई थी और रोने लगी थी। वो मुझे चूम रही थी। परिवश हैरान और परेशान थी। इसी दौरान अरहम भी आ चुका था। मैंने झटके से खुद को बिनिश से छुड़ाया। मुझे बहुत शदीद गुस्सा आ रहा था, शायद मैं गिरने लगी थी। अरहम ने मुझे थाम कर सोफे पर बिठाया। मेरी सर्द महरी को बिनिश ने भी जैसे महसूस कर लिया था और अब वो खामोशी से मुझे देख रही थी, लेकिन मेरा जहन तो साएं साएं कर रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। बिनिश फिर उठी और परिवश को मेरे सामने लाते हुए बोली, ये देखो, ये तुम्हारी बेटी सिद्रा है, जिसे मैंने अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार दिया है। मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ, मुझसे बेशक ना बोलो, लेकिन अपनी बेटी को तो सीने से लगा लो। मैंने परिवश की तरफ देखा, वो हैरत से मुझे देख रही थी। मैं एकदम उठी और इसे सीने से लगा लिया और दीवानों की तरह उसे प्यार करने लगी। अब आंसू बहाने की बारी मेरी थी। मेरी बच्ची, मेरी सिद्रा, मेरी जान, मैं प्यार कर रही थी। जब जज्बात का तूफान थमा तो गिले शिकवे हुए और बिनिश मेरे कदमों में बैठी माफिया मांग रही थी। इसने बताया कि फुप्पो ने ना जाने कब ये प्लान बनाया था। वो समझती थी कि तुम्हारी माँ बहुत चालाक हो और वो अपने बेटे की जुदाई में तड़पती हैं। इसी तरह वो तुम्हें भी औलाद के दुख में तड़पाना चाहती थी और ये सब कुछ मुझे भी ना बताया गया। अगर बताती तो मैं अरहम को दानिश के साथ कभी न भेजती। हम इतनी दूर चले गए थे कि वहाँ से आना मुझ अकेली औरत के बस की बात ना थी। मैंने भी अपनी बेटी की जुदाई सही है। मैं भी पल पल रोई हूँ, जाने मेरा बेटा कैसा होगा। लेकिन तुम्हारा दुख मेरे दुख से बड़ा है। मेरे पास मेरी बेटी हिरा है जो अरहम से छोटी थी। तुम्हारी फुप्पो फालिज का अजाब सहकर चल बसी। आखिरी वक्त में वो तुम्हें याद करके अपने गुनाहों की माफिया मांगती रही थी। बिनिश रो रही थी। ये रहा तुम्हारा बेटा अरहम। मैंने अरहम को इसके सामने कर दिया। बिनिश अपने बेटे अरहम को सीने से लगाए रो रही थी और उससे बेतहाशा प्यार कर रही थी। आज मेरे घर में खुशी का समा था। मेरे बेटे की शादी हो रही थी। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी प्यासी ममता सैराब होने जा रही थी। मेरे घर में मेरी अपनी सगी बेटी बहू की सूरत में आने वाली थी। पिछले 20 बरसों में पल पल में रोई थी। जाने कितनी रातें मैंने तड़प तड़प कर गुजारी थी। कर्ब का एक तूफान मैंने झेला था और कितनी ही बार घबरा कर मौत को गले लगाने की कोशिश की थी। मैं आज भी अक्सर सोचती हूँ कि आखिर फुप्पो ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं उनकी बहू ही नहीं बल्कि भतीजी भी थी, उनका सगा खून थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे साथ इतना जुल्म किया। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।